Morning students, how are you? I hope all of you are well. Today we will discuss about races and games. In races and games, first of all we have to discuss about the main points. Races. A races is a competition in which competitors have to cover a certain distance in a minimum possible time. A races include activities like running, riding, driving, sailing, rowing, etc. The path followed by the competitors during the race is called a race course, and the point where a race starts, that is the initial point, that is known as starting point, and where the point where a race finish is known as final point or the finishing point. Races and games are the subtopic of time, speed and distance, and therefore we have to use the formula for time, speed and distance. Now terms related to races. The first one is that is A gives B a start of x meters. यानी कि स्टेटमेंट्स में कई बार होता है हमारे पास ये गिवन होता है A gives B a start of x meters. It means while A starts the race from the starting point and B starts x meter ahead of A. It means to cover a race of y meters in this case, A will have to cover y meter and while B will have to cover only y minus x meter. Okay, यानी कि A gives a start of B, तो जो B है वो A के x मीटर आगे खड़ा है. Okay, yes, and now here A beats B by x meters. A beats B by x मीटर. इसका मतलब ये है कि A स्टार्टिंग पॉइंट पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहले पहुंचा है और B उसके x मीटर पीछे है सेम टाइम पर. It means to cover a race of y meters in this case, A has to cover y meters while B has to cover only y minus x meters. ठीक है, अब पहले स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स था, अब एंड ऑफ एक्स मीटर्स है. ठीक है, यहाँ पर है A gives a start of x meters, यहाँ पर क्या है A beats B by x meters. Yes, now A gives B a start of t minutes, यानी कि सेम इसी तरह से जैसे वो x मीटर्स के लिए था, अब ये हमारे पास टाइम की बात हो रही है. इट इम्प्लाइज A will start t minutes after B starts from the starting point, but both A and B will reach the finishing point at the same time. Okay, and now A beats B by x meters and t minutes. It means the A and B start from the starting point at the same instant, but while A reaches the finishing point, B is behind by x meters and B takes t meter more compared to A to complete the race. यानी कि दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टार्ट किया, लेकिन A तो जल्दी पहुंच गया फिनिशिंग पॉइंट पर, B उसके पीछे है, x मीटर्स पीछे है और B को t मिनट्स और लगेंगे. ठीक है, एंड सो द B कवर्स रिमेनिंग x मीटर्स इन एक्स्ट्रा t मिनट्स, क्योंकि x मीटर पीछे है तो उसको एक्स्ट्रा t मिनट्स लगे उसको पहुंचने के लिए. इट गिव्स the speed of B as x by t, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम.
तो डिस्टेंस हमारे पास x मीटर है जो उसको कवर करना है कितने टाइम में, t टाइम में कवर करना है, तो इट मीन स्पीड इज इक्वल टू x by t. Yes, now a dead heat. When all the participants of the race finish the race at the same instant of time, यानी कि दोनों ने सेम ही टाइम पर फिनिश की रेस, और ये जो सिचुएशन बनती है यानी कि जो दोनों हमारे पास सेम टाइम पर पहुंचते हैं, ठीक है, मैच ड्रॉ हो जाते हैं, एंड सच सिचुएशन इज नोन एज डेड हीट सिचुएशन. ओके, yes, now we have to discuss about the examples. Example number 1, in a 1,000-meter race, A, B and C get the gold, silver and bronze medals respectively. A beats B by 100 meters and B beats C by 100 meters. Then by how many meters does A beat C? यानी कि 1000 मीटर की रेस है, उसमें A को गोल्ड, B को सिल्वर और B को गोल्ड, सिल्वर एंड C को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं. तो अब A ने B को बीट किया 100 मीटर से, इसका मतलब है A travels 1000 meters in the same time in which B travels 900 meters. क्योंकि A ने B को 100 मीटर्स बीट किया तो इसका मतलब B 100 मीटर पीछे है, तो टोटल हमारे पास जो मीटर रेस थी वो 1000 थी, इसलिए B ने कितना ट्रेवल किया 900 मीटर्स. एंड B बीट्स C by 100 meters. इट मीन्स B ने अगर 1000 मीटर ट्रेवल किया तो C ने 900 मीटर्स ट्रेवल किए. ओके, यस. नाउ अब हम रेशो की बात करते हैं, तो रेशो हमारे पास क्या होगी, A:B 10:9, क्योंकि 1000 is to 900. सेम इसी तरह से B और C की रेशो क्या है 10:10:9. ठीक है, अब टोटल रेशो की बात करें तो टोटल रेशो में अगर A हमारे पास 100 था, ठीक है, तो B कितना हो गया 90, ठीक है, और C कितना हो जाएगा 81, क्योंकि वो उसके 100 मीटर पीछे है, ठीक है, तो 190 का 100 तो हमारे पास 9 हो जाएगा, तो 90 minus 9 that is equal to 81. तो it means the ratio is 100:90:81. ठीक है, it means A travels 100 meters and in the same time C travels 81 meters. Okay, I hope you understand this. Yes, now therefore we can say that A travels 1000 meters in the same time C travels 810 meters. क्योंकि इसका मतलब ये जो था ना हमारे पास ये 100 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, C सेम टाइम पर 80 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेशियो. ठीक है, ये रेशियो के अकॉर्डिंगली था, क्योंकि हमने किसको फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना था 1000 मीटर्स के लिए फाइंड करना था. तो 1000 मीटर्स के लिए हमारे पास A ने 1000 ट्रेवल किया और C ने 810 meters travel here. Okay, yes, now we have the next one, the next example, that is Priya can run 1 kilometer in 10 minutes 3 minutes 10 seconds and Preeti can cover the same distance in 3 minutes 20 seconds. By what distance Priya beat Preeti? ठीक है, अब प्रिया ने कितने मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें प्रिया ने 1 किलोमीटर इन 3 मिनट 10 सेकेंड्स में ट्रेवल किया. अब ये जो 3 मिनट 10 सेकेंड्स हैं इसको अगर हम सेकेंड्स में बात करें तो हमारे पास क्या होगा 3 × 20 3 × 60,
क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस 10, ठीक है। एंड देयरफॉर वी गेट 180 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 190, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 190 सेकेंड्स। और जो प्रीति है, प्रीति ने सेम डिस्टेंस 3 मिनट 20 सेकेंड्स में कंप्लीट किया, यानी कि प्रीति को जो टाइम लगा वो हमारे पास कितना होएगा, 3 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि प्रीति ने तो 190 सेकेंड्स, प्रिया ने 190 सेकेंड्स में कवर किया, और जो प्रीति है उसने 200 सेकेंड्स में कवर किया। इट मीन्स जो प्रिया है, प्रिया ने प्रीति को बीट्स किया बाय 10 सेकेंड्स, क्योंकि जल्दी पहुंच गई, तो 200 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स उसने बीट किया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि प्रिया ने प्रीति को कितने उसमें ट्रेवल किया, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस कैन प्रिया बीट प्रीति, ठीक है। अब जो टोटल जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो डिस्टेंस प्रीति ने कितना ट्रेवल किया 10 सेकेंड्स के अंदर। अब प्रीति जो, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस था वो हमारे पास था 1000, जस्ट 1000 डिस्टेंस था, और प्रीति ने कितना टाइम लिया था उसको कवर करने के लिए, 200 सेकेंड्स। तो जो प्रीति की डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स, क्योंकि उसने 10 सेकेंड्स में कवर किया था, ओके। 1000 किलोमीटर 200 में किया, लेकिन हमने ये फाइंड करना है ना कि 10 सेकेंड्स के अंदर उसने कितना किया, तो इसलिए 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 meters, okay। It means the Priya beats Preeti by 50 meters, okay। Yes, now we have the next example. Two runners A and B complete a 100 meters race in 36 seconds and 48 seconds respectively. By how many meters will A defeat B? ठीक है, तो अब इसमें जो है A ने B को कितना डिफीट किया, कितने मीटर्स में डिफीट किया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय B, ठीक है। अब B ने कितना डिस्टेंस कवर किया आफ्टर A फिनिशिंग द रेस, ओके। वी हैव टू फाइंड दिस, दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय B इन, क्योंकि B ने 48 सेकेंड्स में किया था, A ने 36 में किया था, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 48 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस जो B ने 12 सेकेंड्स में कवर किया दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 100 मीटर तो उसकी थी हमारे पास रेस, और 48 सेकेंड्स में उसकी कवर किया था, तो 100 बाय 48 multiplied by 12 that is equal to 25 meters. It means the A beats B by 25 meters. Okay, yes, now we have the next one. In a 500-meter race, the ratio of speed of two contestants A and B is 3:4. A has a start of 140 meters and then find the distance by which A will win, ठीक है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है A कितने डिस्टेंस से विन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 140 मीटर इन ए 500 मीटर रेस, ठीक है।
तो ए ने स्टार्ट किया 140 मीटर इन 500 मीटर रेस, यानी कि विनिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए को कवर करना था 500 माइनस 140, दैट मीन्स 360 मीटर। और रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी दैट इज गिवन इज टू 3:4। इट मीन्स है कि जब ए ने 3 मीटर ट्रेवल किया तो बी ने 4 मीटर कवर किया, और जब ए ने 360 मीटर ट्रेवल किया और बी ने कितना ट्रेवल किया 4/3 इंटू 360, यानी कि 480 मीटर। ठीक है, यानी कि when A reaches the winning point, B covers 480 meters and therefore remaining 20 meter behind A। ठीक है, B ने 480 मीटर ट्रेवल किया और जो B था वो A से 20 मीटर पीछे था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स and have a nice day।